Hello students, today we will be talking about preparation of jam jelly and marmalades and how to prepare jam jelly and marmalades and what precautions or points should be kept in mind while preparing these products. First, will be discuss about preparation of jam. Jam is a product obtained by cooking fruit pulp with sugar and acid to a desired consistency. Desired consistency means boiling is continued till the seed test is पॉजिटिव. जब तक सीड टेस्ट पॉजिटिव ना आ जाए तब तक उसको बॉयल करते रहते हैं डिजायर कंसिस्टेंसी के लिए. सीड टेस्ट क्या होता है अभी हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे. जैम कंटेंस एसिडिटी 0.5 to 0.6% मीन्स 5 ग्राम per kg of fruits and TSS 68% TSS. या पीओ स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो फूड प्रोडक्ट आर्डर स्पेसिफिकेशन मिनिमम परसेंटेज ऑफ TSS 68% and minimum percentage of fruit juice should be 45%. Preparation techniques in the preparation of jam. First, select ripe fruits, then washing, then peeling and cutting into small pieces and removal of seed, then blanching for 3 to 5 minutes. Blanching, the main objectives of blanching is to inactivate the enzyme and softening of the tissue. Then pulping in mixie or pulper. Then next point is cooking up to desired consistency. In case of jam, pulp, water and sugar ratio is 1:1:1. Addition of citric acid 5 gram per kg of fruits 0.5 to 0.6%. फिर judging the end point by seed test method. Seed test method क्या है? Seed test, a small portion of jam jellies are taken out during boiling in a spoon, cooled slightly, उसको ठंडा कर लेते हैं and allowed to drop, उसको गिराते हैं किसी भी सीट या प्लेन पेपर पे. इफ प्रोडक्ट फॉल ऑफ इन द फॉर्म ऑफ सीट इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग इन ए कंटिन्यूस सिरप, अगर वो सीट के रूप में अगर गिर जाता है तो इट मीन्स द एंड पॉइंट हैज़ बीन रीच्ड एंड द प्रोडक्ट इज रेडी. अदरवाइज द सीट टेस्ट इज निगेटिव. इफ सीट टेस्ट इज निगेटिव, बॉइलिंग इज कंटिन्यूड टिल द सीट टेस्ट इज पॉजिटिव. Next, if seed test is positive, then filling hot into clean and sterilized bottle, cooling, capping and storage in cool and dry place. Next, problems in jam production. Main problems in jam production, first है क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन मीन्स रवे बनने की प्रक्रिया. उसके ऊपर जो है प्रोडक्ट के ऊपर रवे जैसे जो है बनेगा, क्रिस्टल बन जाएंगे छोटे छोटे से. तो इसका कारण क्या है? इनवर्ट शुगर लेस देन 30%. प्रिकॉशंस क्या है? ऐड कॉर्न सिरप. स्टिकी जैम और गमी जैम चिपचिपा हो जाना, जैम का चिपचिपा हो जाना. हाई परसेंटेज ऑफ TSS ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ TSS. प्रिकॉशंस ऐड पेक्टिन और सिट्रिक एसिड. प्रीमेच्योर सेटिंग, समय से पहले सेटिंग हो जाना. काजेस लो TSS एंड हाई पेक्टिन. लो TSS एंड हाई पेक्टिन. ऐड मोर शुगर. सरफेस ग्रेनिंग एंड श्रिंकेज, सतह दानेदार बनना और सिकुड़ना. इट इज़ ड्यू टू इवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर ड्यूरिंग स्टोरेज. प्रिकॉशंस के लिए क्या करेंगे इसके लिए? स्टोरिंग इन कूल प्लेस. माइक्रोबियल स्पाइलेस, मोल्ड्स कास्ट स्पाइलेस. प्रिकॉशंस के लिए ऐड 40 ppm KMS पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड. नेक्स्ट, jelly. Jelly is a semi-solid product obtained by boiling a clear instant fruit juice with sugar and acid to a thick consistency. A good jelly is clear, साफ होगी, ट्रांसपेरेंट, चमक पारदर्शी होगी, स्पार्कलिंग चमकदार होगी एंड अट्रैक्टिव कलर की होगी. कीप इट सेफ इन विच इट इज़ कट. मेन अगर आपकी जेली अगर अच्छे से सेट हुई है, जेली अगर आपकी अच्छी है
अगर तो उसको क्या करेंगे, जिस शेप में अगर आप कट कर रहे हैं उसी शेप में वो रहनी चाहिए, वो ब्रेकिंग और फ्लोइंग नहीं होना चाहिए, मतलब उसको टूटना नहीं चाहिए और उसे सिरप नहीं निकलना चाहिए। जेली की अगर हम बात करें तो जेली कंटेंस TSS नॉट लेस देन 65% एंड एसिडिटी 0.5 to 0.7%. FPO फूड प्रोडक्ट ऑर्डर specification minimum percentage of TSS in jelly 65% and fruit juice 45%. In case of jelly, pectin substance present in the form of calcium pectate are responsible for firmness of the fruits. Pectin is most important constituents of jelly. Pectin is most important constituents of jelly. In early stage of development of fruits, the pectic substances are insoluble in water. In early stage of developments, the pectic substances are insoluble in water, which is converted into soluble form pectinic acid by the enzyme protopectinase during ripening of the fruits. Then in overripe stage, due to presence of pectic methyl esterase enzyme, the pectin get largely converted to pectic acid, which is water insoluble. This is one of the reason both immature and overripe fruits are not suitable for making jelly. Only ripe and firm fruits are used for making jelly. In case of this table show underripe fruits, pectin present in the form of protopectin, water insoluble, texture of fruits and vegetables hard रहेगा. Ripe stage में pectin और पेक्टिनिक एसिड फॉर्म में रहेगा, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में रहेगा. दिस फॉर्म इज मोस्ट सुटेबल फॉर जेल मेकिंग फॉर मेकिंग ऑफ गुड जेली. प्रोटोपेक्टिन and pectic acid are not good for making jelly. Only firm ripe fruits is good for making jelly. In case of jelly, the 0.5 to 1% of pectin is of good quality in the fruit extract is sufficient to produce a good jelly. Sugar, when sugar is boiled with acid, it is hydrolyzed into dextrose and fructose. The degree of inversion depends upon the pH and duration of boiling. The optimum pH value for jelly is 3.2. Acids, 3 acids, citric, malic and tartaric acid found in foods. The tartaric acid gives the best result. Final jelly contains 0.5 to 0.75% total acids because a large quantity may cause synergies. Preparation techniques. In the preparation of jelly, pulp and water ratio is 1:1.5 and pulp and sugar ratio 1:750 ग्राम. मीन्स पल्प और वाटर का रेशियो अगर एक किलो अगर पल्प अगर यूज़ कर रहे हैं, गूदा अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें पानी जो है 1.5 लीटर यूज़ करेंगे. अगर पल्प अगर आपका 1 किलो है तो उस पर शुगर कितना होगा, 750 ग्राम जो है शुगर यूज़ करेंगे. अब प्रिपरेशन टेक्निक्स क्या है, अभी हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. प्रिपरेशन टेक्निक्स में ओनली राइप फर्म फ्रूट्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग जेली. इट इज़ द स्टेज in this stage pectin present in water soluble form. Pectinic acid not overripe fruits used for preparation of jelly. Then washing, then peeling, cutting into thin slices and seed removal, boiling with water, addition of citric acid while boiling 6 ग्राम पर kg fruits. फिर स्ट्रेनिंग ऑफ एक्सट्रैक्ट, उसको छान लेते हैं अच्छे से. फिर पेक्टिन टेस्ट फॉर एडिशन ऑफ शुगर
और शुगर अगर ऐड करना होता है तो उसको जो है पेक्टिन टेस्ट करते हैं और जेल मीटर टेस्ट करते हैं, फिर एडिशन ऑफ शुगर उसके हिसाब से फिर शुगर और ऐड करते हैं। देन कुकिंग, फिर जजिंग द एंड पॉइंट बाई सीट और ड्राफ्ट टेस्ट और TSS 65% बाई हैंड रिफ्रेक्टोमीटर, removal of scum. Then if SIP test is positive, then filling heart into clean and sterilized bottle, then cooling, cupping and storage in cool and dry place. Next, problem in jelly making. Problems in jelly making, problems क्या है? Failure to set कुकिंग बिलो द, कारण क्या हो सकता है फेलियर टू सेट का? कुकिंग बिलो द एंड पॉइंट, एंड पॉइंट से कम अगर आप जो है कुकिंग कर रहे हैं, मतलब इट मीन्स जो है सीट टेस्ट आपका जो है निगेटिव ही आएगा इसमें। लैक ऑफ एसिड और पेक्टिन, लो कुकिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, एडिशन ऑफ टू मच शुगर, क्लाउडी और फॉगी जेलीज, यूज ऑफ इमेच्योर फ्रूट्स, नॉन क्लेरिफाइड जूस, ओवर कुकिंग, ओवर कूलिंग, क्रिस्टल फार्मेशन, यूज ऑफ एक्सेस शुगर। क्रिस्टल फार्मेशन कब होगा? जब आप ज़्यादा शुगर उसमें यूज़ करेंगे। सिनर्सिस और बीपिंग ऑफ जेलीज, एक्सेस ऑफ एसिड्स, अगर एसिड अगर ज़्यादा आपने अगर डाल दिया तो जो जेली होगी वो बीपिंग होगी, वो जो है अच्छे से सेट नहीं होगी। या इसका एक कारण और हो सकता है टू लो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, अगर शुगर का कंसंट्रेशन है तब भी ये होगा। या इनसफिशिएंट पेक्टिन के कारण भी आपका सिनर्सिस और बीपिंग ऑफ जेलीज की प्रॉब्लम आ सकती है। फर्मेंटेशन काज्ड बाय मोल्ड ड्यू टू नॉन कवरिंग द जेली प्रॉपरली, अगर जेली को कवर नहीं करते हैं तो उसमें फर्मेंटेशन भी होता है। इट इज़ मोस्टली फ्रॉम मोल्ड। नेक्स्ट, marmalades. Marmalade is a fruit jelly. This is also a type of fruit jelly in which slices of the fruits or its peels are suspended. Marmalades are prepared usually from citrus fruits like orange and lemon 2:1 ratio में, in which shredded peels is used as a suspended materials. Citrus marmalades are classified into two, jelly marmalades और jam marmalades. मार्मलेट भी एक प्रकार जो है फ्रूट जेली का एक प्रकार है जिसमें जो है स्लाइसेस ऑफ द फ्रूट और इट्स पील्स, मतलब चाहे फ्रूट का स्लाइसेस भी और या उसका पील, उसका छिलका निलंबन फॉर्म में जो है पूरे प्रोडक्ट में आपको दिखेगा। तो मार्मलेट्स बेसिकली जो है सिट्रस फ्रूट से ही तैयार करते हैं जिसमें ऑरेंज और लेमन का रेशियो 2:1 रेशियो में रखते हैं। प्रिपरेशन टेक्निक्स इसकी क्या है? पहले राइप फ्रूट्स लेंगे, राइप फ्रूट्स, देन वॉशिंग, देन पीलिंग आउटर पोर्शन, फ्लेविडो, जिसे आउटर पोर्शन कहते हैं फ्लेविडो, फ्लेविडो को पील करेंगे आउटर पोर्शन को, फिर कटिंग पील इनटू फाइन श्रेड्स, उसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे जो कि 2 सेंटीमीटर लंबे होंगे और 0.1 सेंटीमीटर थिकनेस होगी, उसमें मोटाई होगी। कटिंग ऑफ पील्ड फ्रूट्स 0.4 सेंटीमीटर थिकनेस। अब इसके बाद जो फ्रूट्स को जो है छीलने के बाद जो है उसको 0.4 सेंटीमीटर थिकनेस में काट लेते हैं। एडिशन ऑफ वाटर इन द रेशियो ऑफ 2:1 के रेशियो में। जैसे अगर आपका पूरा प्रोडक्ट जो है ऑरेंज और लेमन दोनों का अगर 2 किलो है तो उस पे जो है 1 लीटर जो है पानी यहाँ ऐड करेंगे। फिर बॉइलिंग फॉर 40 to 50 मिनट्स, फिर 40 से 50 मिनट तक उसको बॉयल करेंगे। स्ट्रेनिंग ऑफ एक्सट्रैक्ट, इसके बाद फिर एक्सट्रैक्ट को स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे। फिर पेक्टिन टेस्ट फॉर एडिशन ऑफ शुगर और जेल मीटर टेस्ट, जैसे हमने जेली में किया था वैसे जेल मीटर टेस्ट इसका करेंगे, देख करके फिर उसमें और शुगर ऐड करेंगे। देन कुकिंग टू 105 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, फिर 105 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे फिर उसकी कुकिंग करेंगे। फिर एडिशन ऑफ प्रिपेयर्ड श्रेड जो है उसको कैसे करेंगे? पील बॉइल्ड फॉर 15 मिनट्स फॉर 3 to 4 टाइम्स बाय चेंजिंग वाटर फॉर सॉफ्टनिंग एंड रिमूविंग बिटरनेस। जो पील जो है जो जिसको हमने छोटे छोटे श्रेड्स में काट रखे थे उसको 15 मिनट तक जो है 3 से 4 बार जो है पानी चेंज कर करके जो है उसको बॉयल करेंगे, जिससे जो है क्या होगा कि जो उसमें सॉफ्टनिंग आ जाएगी और उसकी बिटरनेस जो है रिमूव हो जाएगी।
इसके बाद फिर जजिंग द एंड पॉइंट बाय सीट और ड्रॉप टेस्ट। सीट टेस्ट हमने बताया, स्मॉल पोर्शन ऑफ मार्मलेट्स fall off in the form of seed instead of flowing in a syrup, मतलब वो सीड फॉर्म में अगर हो जाता है तो द एंड पॉइंट हैव बीन रीच्ड एंड द प्रोडक्ट इज रेडी। इफ नेगेटिव कंटिन्यू टिल द सीड इज पॉजिटिव, उसको जो है बॉयल करते रहेंगे जब तक पॉजिटिव ना आ जाए, या हैंड रिफ्लेक्टोमीटर से भी देख सकते हैं इसको। TSS 65% आना चाहिए लास्ट में जो एंड पॉइंट है। देन कूलिंग and filling in sterilized bottles, then capping and sealing, then storage in cool and dry place. Thank you.